Hello students, this is Chandana and I welcome you to Business Studies class. In our last class, we have started the fourth chapter, that is planning. हमने fourth chapter start किया था जो कि क्या था planning. We have discussed about what is planning. We have discussed about features of planning. In this class, we will be doing the planning process. Now before starting this topic, we will just revise once again in short. What is planning? As I had told you that planning is thinking in advance. पहले से सोचना. क्या सोचना? What is to be done? करना क्या है? How it is to be done? करना कैसे है? When it is to be done? करना कब है? And by whom it is to be done? करेगा कौन? So that is planning. In planning, we decide the future course of action. Future में क्या क्या actions करने हैं? हम अभी से क्या करते हैं? We decide in advance, and that is planning. We have also done one line that planning bridges the gap between present and future. हमने कुछ सोचा कि हमें फ्यूचर में ये अचीव करना है, तो वो हम कब सोचेंगे? We will be thinking in advance. हम अभी at present में सोचेंगे कि हमें फ्यूचर में जो भी गोल अचीव करना है वो सब कैसे अचीव करना है. What will be our plan of action? हम क्या क्या ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम अपना वो फ्यूचर गोल अचीव कर लें. And what helps you to achieve your goal? Your successful planning. जितनी अच्छी प्लानिंग होगी, there are chances that you will be able to achieve your goal. Right? We also have done the characteristics of planning. Planning के बहुत सारे characteristics किए थे. क्या किए थे? That planning is a primary function. Primary means it's a first function. Second is that planning is a continuous function. You have to do it again and again. सिर्फ एक बार planning कर ली, your job is not over. You have to do it again and again because the environment, the business environment keeps on changing. And accordingly, you need to change your plan. Third is that planning is pervasive in nature. Pervasive means it is universal, it is applied everywhere. आप कुछ भी करते हो, planning जरूर करते हो. Whether it's a business organization or a non-business organization. Planning helps you to achieve your goal. Planning क्या करता है? आपको goal achieve करने में help करता है. क्यों? क्योंकि आप प्लान किस चीज का बनाते हो? किसी गोल को अचीव करने के लिए तो बनाते हो. सो इट हेल्प्स यू टू अचीव द गोल. नेक्स्ट इज दैट प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज. वी ऑल नो कि कोई फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ी ना है प्लान करना. प्लान तो आप कहाँ से? ब्रेन से करते हो. यू यूज योर ब्रेन्स टू डू द एंटायर प्लानिंग. इन प्लानिंग यू हैव टू टेक लॉट ऑफ डिसीजंस. बहुत सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, एंड देन यू कम टू अ कंक्लूजन कि ठीक है, ये मेरा डिसीजन है. Therefore we say that planning involves decision making. Right students? Now today, as I told you, that our topic is planning process. Now wherever this word process comes, that means there are certain steps involved. And wherever the steps are involved, that means you have to learn it in a sequence. आपको सीक्वेंस में ही जानना पड़ेगा और उसको लर्न करना पड़ेगा. लाइक इन प्लानिंग प्रोसेस यू हैव दीज 7 स्टेप्स. तो आप ऐसा नहीं कर सकते दैट आफ्टर सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव यू आर सेइंग एनालाइजिंग ऑल्टरनेटिव्स. नो, यू हैव टू लर्न इट इन सीक्वेंस. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर टेलिंग यू अबाउट दिस प्लानिंग प्रोसेस, like before explaining you about all these points, I'll give you an example. Like I'll be taking an example, and उस example की help से I will be explaining all these points. Right, students, this topic is very very important. Case studies can also come. एक case study दे दी 10-15 lines की, and in the question they can ask, identify the steps which are followed in that case study. अब suppose case study में these 3 steps are followed. Right? So your answer will be these 3 steps.
पर ये कब आंसर लिख पाओगे? जब आपको सारे स्टेप्स पता होंगे। सो प्लीज आप सारे कंसेप्ट्स, सारे पॉइंट्स अच्छे से समझो, बिकॉज केस स्टडी में कोई भी स्टेप पूछा जा सकता है, ये भी बीच में से भी। सपोज केस स्टडी में ये दो जो स्टेप्स हैं इसके बारे में कुछ लिखा है, एंड आंसर क्या हो जाएगा? प्लीज फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट, ये आंसर हो जाएगा। तो ये कब आंसर लिख पाओगे? ओनली व्हेन ऑल दी स्टेप्स आर क्लियर। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक का डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, दैट एक्सप्लेन प्लानिंग प्रोसेस। So in that you have to explain all these steps, right? Now students, I'll take an example. First I'll tell you the example and simultaneously I will be explaining all these points, okay? So the example is that there is a girl whose name is Anjali, right? एक girl है जिसका नाम है अंजलि, and she has done a chocolate making course from Delhi. उसने कौन सा कोर्स किया है? चॉकलेट मेकिंग कोर्स फ्रॉम दिल्ली। नाउ आफ्टर डूइंग दैट कोर्स, आफ्टर दैट कोर्स हैज फिनिश्ड, शी डिसाइडेड टू कम बैक टू हर होम टाउन एंड ओपन अ होममेड चॉकलेट आउटलेट। जहां पे आउटलेट मीन्स शॉप। उसने सोचा कि मैं वापस होम टाउन जाऊंगी एंड आई विल बी ओपनिंग अ शॉप, एन आउटलेट, वेयर आई विल बी सेलिंग द होममेड chocolates. मैं खुद बनाऊंगी and I'll be selling those chocolates to the people of my hometown. Right? This is what she decided. So what step she will be doing? सबसे पहला step वो क्या करेगी? She will be setting up the objective. प्लानिंग करेगी तो प्लानिंग में सबसे पहला स्टेप क्या करेगी? शी विल बी सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव। नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव इज द गोल, द टारगेट दैट यू वांट टू अचीव। तो सबसे पहले वो क्या करेगी? अपना गोल बनाएगी, अपना ऑब्जेक्टिव बनाएगी कि मुझे बिजनेस में क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, राइट? स्टूडेंट्स, द ऑब्जेक्टिव, या जैसे आप गोल बोलते हो, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? समथिंग दैट यू वांट टू अचीव। बिजनेस कर रहे हो तो जो अचीव करना चाह रहे हो, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव, राइट? नाउ हाउ शुड बी योर ऑब्जेक्टिव? योर ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी स्पेसिफिक। बहुत ही पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इट शुड नॉट बी वेग, कि वेग नहीं होना चाहिए, बहुत स्पेसिफिक। सेकेंड इज, आई एक्सप्लेन यू दिस ऑल्सो, सेकेंड इज टाइम बाउंड। इट शुड बी टाइम बाउंड। इट शुड बी time specific, that within this time the goal has to be achieved. Third is, it should be achievable. हमेशा गोल कैसा बनाना चाहिए, हमेशा ऑब्जेक्टिव कैसा बनाना चाहिए? which you can achieve. ऐसा नहीं बनाना चाहिए which you cannot achieve, which is impossible for you to achieve in a particular circumstances, right? Now students, as I told you that the objective should be specific. अब specific मतलब क्या हुआ? Specific मतलब ये हुआ कि बहुत ही पर्टिकुलर होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सपोज कोई सेल्स टीम है, सेल्स टीम को सेल्स मैनेजर ने ये टारगेट दिया कि दिस ईयर यू हैव टू इंक्रीज द सेल्स। सेल्स मैनेजर ने अपने सेल्स टीम को क्या टारगेट दिया? दैट यू हैव टू इंक्रीज द सेल्स। क्या इस ऑब्जेक्टिव को आप बहुत स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बोलोगे? इंक्रीज तो क्या होता है? एक यूनिट ज्यादा बेच दो, वो भी तो इंक्रीज होता है। कोई सेल्स पर्सन बोलेगा मैंने 5 यूनिट्स ज्यादा बेच दी तो आई हैव इंक्रीज द सेल्स। देयरफॉर ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक। सेल्स मैनेजर को, सेल्स टीम को क्या बोलना चाहिए? दैट यू हैव टू इंक्रीज द सेल्स बाय 20%। एग्जाम्पल है ये कि सेल्स मैनेजर ने अपनी सेल्स टीम को क्या बोला कि यू हैव टू इंक्रीज द सेल्स बाय 20%। तो अब ये ऑब्जेक्टिव कैसा है? वेरी स्पेसिफिक। अब सारे टीम मेंबर्स को क्लियर हो जाएगा दैट उनको कितना सेल्स इंक्रीज करना है, बाय 20%, राइट? तो ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? इट शुड बी स्पेसिफिक। नाउ सेकेंड इज, इट शुड बी टाइम बाउंड. Time bound means it should be time specific.
आप जब ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहे हो तो आपको ये भी डिसाइड करना है कि कितने टाइम में वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। अब सेल्स टीम को सेल्स मैनेजर ने कोई टाइम स्पेसिफिक नहीं बताया, बस क्या बोला, यू हैव टू इंक्रीज द सेल्स बाय 20%। अब कोई सेल्स पर्सन है वो बोलेगा ओके वी विल बी अचीविंग इन 1 month, another will be assuming that they have to achieve the sales target in 6 months, the third will be assuming that we have to achieve the sales target in 1 year। तो हमेशा कैसा ऑब्जेक्टिव देना चाहिए, इट शुड बी टाइम बाउंड। सेल्स मैनेजर को क्या बोलना चाहिए, दैट यू हैव टू इंक्रीज द सेल्स बाय 20% इन विद इन 6 months। तो सबको क्लियर हो जाएगा कि 6 months में ही उन्हें टारगेट अचीव करना है। तो ऑब्जेक्टिव कैसा बनाना है, फर्स्ट इज वेरी स्पेसिफिक, सेकेंड इज टाइम बाउंड, टाइम स्पेसिफिक होना चाहिए, एंड थर्ड इज अचीवेबल। ऐसा नहीं बनाना है विच इज इम्पॉसिबल टू अचीव। अब लास्ट ईयर तक तो वो सेल्स टीम वॉज एबल टू सेल मे बी 10,000 यूनिट्स इन 6 months। लास्ट ईयर तक कितना बेच पा रहे थे, 10,000 यूनिट्स इन 6 months। एंड अब सेल्स मैनेजर ने क्या बोल दिया, दैट यू हैव टू सेल 1 lakh यूनिट्स इन 6 months। एंड सारी सिचुएशंस, मार्केट कंडीशन सब सेम है, तो क्या ये चीज अचीवेबल होगी? 10,000 यूनिट्स से डायरेक्टली ही सेइंग दैट दे हैव टू सेल 1 lakh यूनिट्स इन 6 months। इट इज नॉट अचीवेबल अगर मार्केट कंडीशन सब वैसे ही है जैसे पिछले साल थी, राइट? तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम। तो कैसा आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, विच इज अचीवेबल। ओके, नाउ कमिंग टू दैट एग्जाम्पल। अब अंजलि ने क्या सोचा था, मुझे अपने होम टाउन में एक होममेड चॉकलेट्स का आउटलेट खोलना है। आउटलेट इज व्हाट, शॉप। फ्रॉम दैट आई विल बी सेलिंग द होममेड chocolates to the people of my hometown। ये इसने सोचा था। तो फर्स्ट थिंग व्हाट शी विल बी डूइंग, प्लानिंग करेगी। तो प्लानिंग में फर्स्ट स्टेप क्या करेगी, शी विल बी सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव। शी विल बी डिसाइडिंग कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। सपोज शी डिसाइडेड दैट द 1 year ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट ईयर का ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, दैट आई विल बी सेलिंग chocolates of worth, sales of worth rupees 1 lakh। राइट? तो उसने क्या किया, अंजलि ने अपना ऑब्जेक्टिव बनाया। ऑब्जेक्टिव क्या बनाया कि मुझे 1 lakh रुपीस की चॉकलेट्स सेल करनी है, और कितने टाइम में, कितने टाइम ड्यूरेशन में सेल करनी है, इन विद इन 1 year। सो शी हैज मेड अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड अ टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव। अब अचीवेबल है या नहीं है वो तो उसको अब पता चलेगा। व्हाई? बिकॉज इट इज द फर्स्ट ईयर ऑफ हर बिजनेस। राइट स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले क्या करना है, वी नीड टू मेक द ऑब्जेक्टिव। So then second step is developing planning premises. Now what do you mean by the word planning premises? This word, these two words are very important. It can come in 2 marks also. What do you mean by planning premises? So what is planning premises? Planning premises is forecasting future events that might affect the business। तो प्लानिंग प्रेमिसेस क्या होता है, फोरकास्ट करना, प्रिडिक्ट करना। लाइक एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट्स योर फ्यूचर की फ्यूचर में ऐसा होगा आपके साथ। द सेम वे आपको क्या करना है, यू ऑल्सो हैव टू फोरकास्ट, यू हैव टू प्रिडिक्ट कि आगे आने वाले टाइम में, मे बी इन विद इन 1 year, आगे क्या क्या हो सकता है मेरे बिजनेस में।
what all situations my business might face, right? And अभी से हम ये क्यों फोकस कर रहे हैं? So that we can make our business prepared. हम अभी से अपने बिजनेस को प्रिपेयर कर सकते हैं उन सब सिचुएशंस को फेस करने में. नाउ द स्टूडेंट्स क्वेश्चन अराइजेस इज कि हमें फोकस करना क्या है. हमें फोकस करना है डिमांड का, कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी रहेगी, राइट? क्यों ऐसा फोकस करना? बिकॉज अकॉर्डिंगली वी डिसाइड आवर प्रोडक्शन एक्टिविटीज, कि हमें कितने गुड्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा, राइट? देन कितने लेबर्स रिक्वायर्ड होंगे. सी, फोरकास्टिंग इज नॉट एक्यूरेट. हम एकदम नहीं बोल सकते कि मेरे जस्ट 1 लाख प्रोडक्ट सेल होंगे. वी कैन नॉट से दैट. बट येस, वी कैन फोरकास्ट कि हाँ इतने तक तो सेल हो जाएंगे. सो अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज डिसाइड करेंगे, लेबर्स का डिसाइड करेंगे, रॉ मटेरियल कितना चाहिए होगा, राइट? मशीनरी का कितना यूज आएगा, कितनी कैपेसिटी में वो यूज हो जाएंगे. एंड कैपिटल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि कितना कैपिटल रिक्वायर्ड रहेगा. तो हम अभी से क्या करें? वी आर मेकिंग आवर बिजनेस प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द सिचुएशंस. द सेम वे गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी आगे जाके चेंज हो जाती है तो फिर आगे हमें क्या करना है? द सेम वे सपोज सम कॉम्पिटिटर कम्स अप, किसी और कॉम्पिटिटर ने भी सेम शॉप ओपन कर ली ऑफ सेलिंग होममेड चॉकलेट्स. देन व्हाट विल बी आवर स्ट्रैटेजी? तब हम कैसे करेंगे? हाउ वी विल बी फेसिंग द कॉम्पिटिशन फ्रॉम दैट कॉम्पिटिटर. तो क्या कर सकते हैं? मे बी बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करना पड़े. हो सकता है वी हैव टू गिव डिस्काउंट्स टू द पीपल, और मे बी वी हैव टू इंट्रोड्यूस some innovative chocolates, maybe some innovative boxes in order to attract the customers, right? तो अभी से हम क्या कर रहे हैं? We are forecasting कि अगर ऐसा होता है तो मैं अपने बिजनेस को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, right? And that is developing planning premises in which आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हो कि ये चीजें हो सकती हैं, right? And accordingly you are preparing your business right now so that your business can face those situations if it come across, right? The same example, the Anjali one. अब अंजलि में क्या करेगी? अंजलि will also be forecasting the future. वो भी फ्यूचर को फोरकास्ट करेगी, वो भी डिमांड समझेगी कि इतनी डिमांड हो सकती है, इतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, इतना रॉ मटेरियल चाहिए होगा, इतना लेबर चाहिए होगा, इतना कैपिटल चाहिए होगा, राइट? ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिससे वो फोकस करेगी और अपने बिजनेस को प्रिपेयर करेगी, राइट? स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दीज फर्स्ट 2 पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट में क्या था? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव in which we decide the goal or the objective, and how should be our objective? It should be specific, time bound and achievable. The second one is wherein we have to develop the planning premises. That means that we have to forecast the future events जो कि हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं. एंड ये क्यों ऐसा फोरकास्टिंग करना जरूरी है? बिकॉज वी नीड टू मेक आवर बिजनेस प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर इवेंट्स, राइट? Now coming to the third one. The third step is identifying alternatives. In this step, various alternatives are identified. Alternatives क्या होता है? Options. जो भी options हैं उन्हें identify किया जाता है. Okay. Now coming back to that same example. Now Anjali, as you all know, she had to make the chocolates. अब चॉकलेट बनाने के लिए क्या चाहिए? चॉकलेट स्लैब्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए. चॉकलेट किससे बनती है? चॉकलेट की ब्रिक्स आती हैं, स्लैब्स आती हैं, उससे चॉकलेट बनाई जाती है. अब उसको वो चाहिए, तो उसने पूरे अपने होम टाउन में सर्च किया कि कौन सा वेंडर, कौन सा सप्लायर उसे रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकता है. उसने वेरियस ऑप्शंस को देखा, आइडेंटिफाई किया
कि कौन से वेंडर्स उसे रॉ मटेरियल क्या है, चॉकलेट स्लैब प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसे 2 वेंडर्स मिले अपने होम टाउन में, वेंडर ए एंड वेंडर बी। वेंडर ए एंड वेंडर बी ये इसे कैसे चॉकलेट्स प्रोवाइड कर सकते थे, चॉकलेट रॉ मटेरियल कैसा प्रोवाइड कर सकते थे, जैसा अंजलि को चाहिए था। तो उसने अपने होम टाउन में सर्च किया एंड शी आइडेंटिफाइड 2 वेंडर्स हु कैन, देखो 2 ऑप्शंस है, ये दोनों उसे क्या कर सकते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज द थर्ड स्टेप्स, आइडेंटिफाई alternatives. Okay, students, the fourth step is analyzing alternatives. Analyzing means समझना, examine करना कि कौन सा ऑप्शन अच्छा है। Right, now Anjali had to take raw material from only one vendor. उसे सिर्फ एक ही वेंडर से raw material परचेज करना था, but she had 2 options, A and B. उसने 2 ऑप्शंस आइडेंटिफाई किए थे इन थर्ड स्टेप। अब वो क्या करेगी, एनालाइज करेगी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन अच्छा है। सो देयर आर वेरियस पॉइंट ऑन विच शी विल बी एनालाइजिंग दैट विच वेंडर इज बेस्ट, किससे मुझे रॉ मटेरियल खरीदना चाहिए था। अब वो कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट इज क्वालिटी। क्वालिटी के बेसिस पे एनालाइज करेगी कि कौन सा वेंडर अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। सेकेंड इज कॉस्ट, कौन रीजनेबल रेट्स पे दे रहा है। थर्ड इज क्रेडिट बेसिस, अगर कभी उसे उधारी पे खरीदना हुआ तो विच वेंडर कैन प्रोवाइड मी ऑन क्रेडिट बेसिस, उधारी पे कौन दे सकता है। जस्ट इन टाइम मीन्स जैसे अगर सपोज मेरा रॉ मटेरियल फिनिश हो जाता है, कौन मुझे जल्दी से जल्दी रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकता है। सो देयर आर वेरियस अदर पॉइंट्स, उस पे अंजलि क्या करेगी, एनालाइज करेगी, समझेगी कि कौन सा वेंडर बेस्ट है। राइट, सो इन फोर्थ स्टेप what are we doing, we are analyzing the alternative. थर्ड स्टेप में तो हमने सिर्फ आइडेंटिफाई किया था कि ए और बी ऐसे वेंडर हैं जो हमें रॉ मटेरियल दे सकते हैं, बट इन द फोर्थ स्टेप व्हाट आर वी डूइंग, वी आर एनालाइजिंग, ये सारे पॉइंट्स में हम एनालाइज कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट, चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब अंजलि ने बहुत सोचा समझा, एनालाइज किया इन सब पॉइंट्स पे, एंड फिर शी केम टू द कंक्लूजन, एंड द कंक्लूजन वाज दैट B, this B vendor is the best. इसी से हमें रॉ मटेरियल परचेज करना चाहिए। राइट, सो दिस इज चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। स्टूडेंट्स, these 3 points are actually linked together. पहले में आप आइडेंटिफाई करते हो कि अच्छा ये ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं, देन एनालाइज करते हो, समझते हो कि नहीं इन तीनों में से कौन सा बेस्ट है, मैं उसे एनालाइज करते हैं हम, and after that we choose the best alternative. Okay, now sixth is implementation of plan. आपने जो भी प्लान बनाया है उसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट मीन्स we follow that plan, we start executing that plan. जो भी प्लान बनाया है उसे हम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं, उसे फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। राइट, स्टूडेंट्स, कमिंग टू द सेवेंथ वन, that is follow up. In follow up, what are we doing? We are checking, we are reviewing, we are seeing whether everything is being done according to our plan or not. सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। राइट, एट टाइम्स वी नीड टू मॉडिफाई आवर प्लान्स, कभी कभी प्लान को मॉडिफाई करने की भी जरूरत हो जाती है। राइट, सो इन दिस स्टेप ओनली हम, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, तो अगर प्लान को मॉडिफाई करने की जरूरत है तो हम यहाँ पे मॉडिफाई भी करेंगे। एंड एट टाइम्स वी नीड टू एंटायरली चेंज आवर प्लान बिकॉज ऑफ सम चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, चेंजिंग इन्वायरमेंट। हमारा जो प्लान बनाया है वो सूटेबल नहीं होता है,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वापस से पूरा प्लान चेंज करना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट वी डू इन फॉलो अप स्टेप। यहाँ पे हम प्लान चेक करते हैं कि प्लान के अकॉर्डिंग सब चल रहा है या नहीं चल रहा है, दैट प्लान इज सक्सेसफुल वन और नॉट। अगर कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है वो भी यहाँ इस स्टेप में करते हैं। एंड एट टाइम बिकॉज ऑफ द चेंजिंग एनवायरमेंट, एज आई हैड टोल्ड यू दैट एनवायरमेंट इज डायनेमिक इन नेचर, तो जरूरी नहीं है कि आपने जो प्लान बनाया है वो सक्सेसफुल ही रहेगा। सो एट टाइम्स वी नीड टू चेंज द एंटायर प्लान। सो दिस इज व्हाट वी डू इन दिस स्टेप फॉलो अप। Okay, so now students will revise once again. First is setting up of objective, जहाँ पे हमने objective decide किया। कैसा होना चाहिए, बहुत specific, particular, it should be time bound, time limit के अंदर होना चाहिए, and it should not be impossible to achieve. Second is developing planning premises. In that we forecast the future events जो कि हमारे business पे effect डाल सकते हैं. Third is in this we identify various options. जो भी हमने सोचा है, जो भी हमें गोल अचीव करना है, उसके लिए हम ऑप्शंस ढूंढते हैं. So in this we just identify it. In this we analyze those alternatives. कि कौन सा अच्छा है. And in the fifth step we choose those best alternatives. In sixth one we start following the plan. जो भी plan बनाया है उसे execute करना start कर देते हैं. And in follow up we check. Right students? I hope you must have understood the planning process. I repeat again students, this topic is very important. Okay, thank you.